السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 5ویں جماعت میں زیر تعلیم پیارے بچوں، امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحیح سلامت ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست، آپ کا ٹیچر اعجاز جہانگیر راتھر، ایجوکیشن زون ناربل بڈگام سے۔ پیارے بچوں، اگر آپ نظر دوڑائیں گے تو ان دنوں دان کی جو فصل ہے وہ کاٹنے کا موسم ہے، چھاننے کا موسم ہے، اور آپ کو ان کھیتوں میں مختلف مزدور کام کرتے دکھتے ہوں گے۔ اگر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں گے تو چند سال قبل ہی جب یہ اس طرح کا موسم آتا تھا تو گھر میں، بڑوں میں، بچوں میں ہر ایک میں عجیب قسم کی مسرت پائی جاتی تھی، خوشی پائی جاتی تھی۔ بچے، بوڑھے سب کھیتوں میں دکھتے تھے، اور جب اس دان کی فصل کو چھاننے کا وقت آتا تھا تو مختلف قسم کے لوگ، مختلف قسم کے فنکار ان کاشتکاروں کے اس جگہ پہ جہاں پہ یہ دان کی فصل چھانی جاتی تھی وہاں پہ آتے تھے۔ ان میں سے پیارے بچوں جیسے ایک آتا تھا، اس کو بولتے تھے لڑیشا۔ تو وہ لڑیشا کیا کرتا تھا؟ وہ اپنے مخصوص انداز سے اور اپنی مخصوص آواز میں کچھ گاتا تھا۔ وہ کچھ اس طرح گاتا تھا: لڑیشا لڑیشا دانہ تولان، ٲسس منٛزٕ چھُس بومبر بولان۔ سنا پیارے بچوں؟ ہاں، تب بہت مزہ آتا تھا۔ اس کے پاس مختلف قسم کی چیزیں ہوتی تھی، کنگے ہوتے تھے، سوئیاں ہوتی تھی۔ اسی بہانے وہ یہ فروخت کرتا تھا اور اس کے بدلے وہاں سے دان لے جاتا تھا۔ شالی کا وہ جو چھانا ہوا ہوتا ہے، دانہ کٲشِر پٲٹھۍ یتھ وَنان چھِ، وہ لے جاتا تھا۔ اور بھی بہت سارے مختلف قسم کے لوگ آتے تھے اور یہ جمع کرتے تھے یہ اپنے پاس فلاحی کاموں کے لیے۔ تو ایک عجیب قسم کی خوشی، مسرت، مزہ آتا تھا ان دنوں۔ لیکن اب اگر آج آپ دیکھیں گے تو ان کھیتوں میں آپ کو زیادہ تر باہر کے مزدور ہی کام کرتے دکھیں گے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ لوگ اپنی اس کھیتی، اپنی اس زمینوں سے بیزار سے لگتے ہیں۔ تو چلیے پیارے بچوں، آج ہم اسی عنوان سے وابستہ ایک چیپٹر A seed tells a farmer story پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو میں لکھوں گا، ہمارا آج کا ٹاپک ہے A seed tells a farmer's story۔ پیارے بچوں، آپ اپنی کتاب جو آپ کی EVS کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 126 126 کھولیے، اپنے پاس رکھیے، ایک کاپی اور پینسل بھی اپنے پاس رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو ہمارا یہ سیڈ ہے کیا کہتا ہے؟ I am a small seed. I am a small seed. ٹھیک ہے؟ تو اس چیپٹر میں جن مختلف کریکٹرز کی ہم بات کریں گے ان میں ایک سیڈ جو باجرے کا ہے، اس کے کاشتکار یا زمیندار کہیے جس کا نام دمجی بائی ہے، اس دمجی بائی کے بیٹے
हंसमुख पे बात करेंगे। हंसमुख, इसको मैं उर्दू में लिखूंगा हंसमुख। ये हमें बाद में काम आएगा, मैं बोलूंगा आपको कि मैंने इसको हंसमुख क्यों लिखा। और हंसमुख के बेटे परेश की बात करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारी जो ये किताब है उसका ये सबक चैप्टर ए सीड टेल्स ए फार्मर्स स्टोरी है। इसमें हम 4 कैरेक्टर्स पे बात करेंगे। इसमें सबसे पहले है हमारा सीड, जो अपनी कहानी बयान करता है। तो उसमें वो मुख्तलिफ किस्म के जो उसके काश्तकार हैं, उनमें पहला है दमजी बाई, उसका बेटा है हंसमुख, उसका बेटा है परेश। तो इन पे बात करेंगे। तो ये जो हमारा ये सीड है, बाजरे का सीड है, ये अपनी कहानी बयान करता है। अपनी कहानी में ये बोलता है कि मैं एक लकड़ी के संदूक में, इन अ वुडन बॉक्स, (1940) से पढ़ा हूं। यही अपनी कहानी बयान करता है। और इसका जन्म कहां हुआ है? वो हुआ है वनगाम, गुजरात में। और इसका काश्तकार कौन है? वो है दमजी बाई। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? शाबाश। तो इसका कहना है, ये जो ये बीज है हमारा, ये बाजरे का सीड है, इसका कहना है कि उस साल यानी 1940 में इस वनगाम गुजरात में ये जो ये बाजरा है और जवार, इसकी खूब फसल हुई है। इसका गला बहुत निकला है। तो जब इसका गला बहुत निकला, बहुत पैदावार हुई उसकी, तो लोग खुशियां मनाने लगे। तो लोग दे वर इन ए फेस्टिव मूड। फेस्टिव मूड, ठीक है। अब जब इसकी पैदावार हुई, अच्छी पैदावार हुई, तो उन दिनों लोग क्या करते थे? ये हमें कौन बोल रहा है? ये सीड बोल रहा है, बाजरे का सीड। उन दिनों लोग एक काम करते थे, वो जब ये फसल निकलती थी, ये अनाज निकलते थे, उसमें से एक अच्छा शेयर, गुड सीड्स, इनको अलहदा किया जाता था, इनको अलहदा रखा जाता था और उनको स्टोर किया जाता था। स्टोर किस में किया जाता था? एक लौकी, ये मानिए आप a special kind of gourd, alhaz al, इसमें इसको रखा जाता था। इसके बाद इसके ऊपर एक कीचड़ जो है, मड की रैपिंग चढ़ाई जाती थी, लेयर ऑफ मड, उससे इसको बंद किया जाता था। यानी ये एयर टाइट बन जाता था। ठीक है, तो ये सारा किसने किया है जो हमें ये सीड बता रहा है? इस दमजी बाई ने। ठीक है, ये हमें दमजी बाई जो है, इसने ये सारा काम किया है। और इस तरह के मुख्तलिफ काश्तकार यही काम करते थे। उन दिनों ये सीड का कहना है कि उन दिनों ये दमजी बाई और उसके बाई जो हैं वो इकट्ठे रहते थे, यानी उनकी एक बहुत बड़ी फैमिली थी। तो ये अच्छी तरह से रहते थे, मजे से रहते थे, प्यार मोहब्बत थी आपस में। तो उसके बाद जब विंटर आता था, तो विंटर में लोग क्या करते थे?
लोग खुशियां मनाते थे और एक स्पेशल काइंड ऑफ फूड वो बनाते थे जिसका नाम उंदिया था। UNDHIYA, उंदिया। ये एक गुजराती लफ्ज है, गुजराती लफ्ज है उंदिया, जिसके मानी तल्ले ऊपर यानी अपसाइड डाउन के हैं, अपसाइड डाउन। इसमें किया क्या जाता था, इसमें मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और उनको इस मिट्टी की हांडी में डाला जाता था। ठीक है, क्ले पॉट, इस हांडी में इसको डाला जाता था और इसमें ताजा मसाले जो हैं उनको मिलाया जाता था, फ्रेश स्पाइसेस। और इसको पकने के लिए वो इसको रात भर छोड़ते थे, आराम आराम से इसको पकाते थे और इस तरह ये स्पेशल काइंड ऑफ डिश, ये फीस्ट वो तैयार करते थे। गांव के मुख्तलिफ लोग एक जगह जमा होके और इस तरह वो खुशियां मनाते थे, ऐश करते थे, उनको बहुत मजा आता था। और लोग क्या करते थे, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स उगाते थे। लेकिन एक बात थी कि वो अकॉर्डिंग टू सीजन, यानी सीजन के जो कंपैटिबल ये मुख्तलिफ किस्म की फसलें थी वो उगाते थे। और बाकी काश्तकार या जमींदार कॉटन भी उगाते थे, कॉटन। इसको वो स्पिनिंग व्हील्स पे चढ़ाते थे तो स्पन, यानी इसको वो काटते थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इतना आपने सुना। आप मुझे बताएंगे कि आपके एरिया में, आपके इलाकों में, आपके घरों में ये जो मुख्तलिफ किस्म के अनाज हैं उनको महफूज रखने के लिए क्या किया जाता है? शाबाश, हां, उनको मुख्तलिफ एयर टाइट कंटेनर्स में रखा जाता है। किन में रखा जाता है? एयर टाइट कंटेनर्स। मुख्तलिफ एयर टाइट कंटेनर्स, एयर टाइट कंटेनर्स, इनमें रखा जाता है। या कुछ दालें जो होती हैं उनको धूप में सुखाया जाता है, उनको सन ड्राइड, some seeds are sun dried, some pulses are sun dried, उनको धूप में सुखाया जाता है। इस तरह उनको अगले साल के लिए, अगले सीजन के लिए महफूज किया जाता है। ठीक है, तो इसी तरह प्यारे बच्चों ये कहानी चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले आपकी जो बुक है उसमें पेज नंबर 128 पे मुख्तलिफ सीड्स दिखाए गए हैं। पेज नंबर 128 मैं आपको दिखाऊंगा, उनको आपको नाम बताना है। ठीक है, ये आपकी बुक है, पेज नंबर 128। यहां पे ये मुख्तलिफ जो सीड्स हैं इनको दिखाया गया है, सीरियल्स हैं, इनको दिखाया गया है, तो उनको हमें नाम देना है। तो प्यारे बच्चों आप नोट कर लीजिए, जो हमारा ये पहला इसमें ये सीरियल है, सीड है, तो वो है मेज, यानी मक्की का बीज। इसी तरह दूसरा है ये वाला, दिस इज मस्टर्ड। इसी तरह एक और है, दिस इज व्हीट। और इसी तरह एक और है लास्ट में, दिस इज बाजरा। तो ये हमारे मुख्तलिफ किस्म के ग्रेन्स हैं, उनको हमें लेबल करना था। तो हमारा इसमें पहले है मेज, फिर है मस्टर्ड, फिर है व्हीट और फिर है बाजरा। तो
हम बात कर रहे थे एक स्मॉल सीड की जो अपनी कहानी बयान करता है और अपने काश्तकार दमजी बाई की कहानी भी बयान करता है। तो उसका मजीद कहना है, जब साल गुजरते गए, उनकी जो खेती थी वहां पे वनगाम गुजरात में, तो उनको एक नहर से, कनाल से पानी मिलता था जो सफिशिएंट था, काफी था। उस नहर के आगे एक डैम बनाई गई थी जहां से ये नहर पानी लाती थी और इनके इन खेतों तक पहुंचाती थी। ठीक है, फिर क्या आई? ये बीज कह रहा है, ये कह रहा है कि फिर इलेक्ट्रिसिटी आई। इलेक्ट्रिसिटी आई, बटन दबाओ और रोशनी हुई। ठीक है, अब वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों ने क्या किया? लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की जो फसलें हैं उनको उगाना शुरू किया। ठीक है, उसमें उन्होंने ज्यादातर वही फसलें उगानी शुरू की जिनका बाजार में अच्छा दाम मिलता था, जैसे कॉटन एंड व्हीट। कॉटन एंड व्हीट, लोगों ने ये फसलें उगानी शुरू की। क्यों? क्योंकि इनका बाजार में अच्छा दाम मिलता था। और ये कहानी कौन बोल रहा है? एक स्मॉल सीड। याद रखिएगा बच्चों। इसके बाद क्या हो गया कि ये बीज कह रहा है, ये सीड कह रहा है कि हमें लोग भूलने लगे। दे स्टार्टेड रिजेक्टिंग अस। इनको जैसे बाजरा है, जैसे जवार है, इनको लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों? अब लोग इनको स्टोर भी नहीं करते थे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोगों को बाजार से, मार्केट से रेडीमेड बीज सीड्स इजीली अवेलेबल हो गए। तो लोगों ने सोचा अब हमें जरूरत ही क्या है इनको स्टोर करने की, बाजार से हमें ये इजीली मिलते हैं, इसलिए अब हम ये बाजार से ही लाया करेंगे। ठीक है, यहां से इसका जो काश्तकार था दमजी बाई, वो अब started growing old। तो जिम्मेदारी किस पे आन पड़ी? शाबाश, अभी मैंने बोला था ना, इसका बेटा जिसका नाम हसमुख था, हसमुख भी अपना काम, अपनी काश्तकारी ठीक से चलाने लगा। लेकिन इस दौरान जो ट्रेंड थी वो थोड़ी चेंज हो गई। हसमुख जो है, इसने जो मॉडर्न टेक्निक्स थी, मॉडर्न मशीन्स जो थी, वो लेनी शुरू की। जैसे अगर दमजी बाई बुलॉक्स जो बैल होते हैं उनके जरिए से ये हल जोतता था, जमीन खोदता था, लेकिन अब उसकी जगह ट्रैक्टर ने ले ली। तो हसमुख के साथ मैं ट्रैक्टर लिख दूंगा। ठीक है, जहां दमजी बाई इस जमीन को सैराब करने के लिए, पानी पहुंचाने के लिए, आबपाशी के लिए वही ट्रेडिशनल मेथड यूज करता था, वहां हसमुख ने वाटर पंप ले लिया। इसने क्या ले लिया? वाटर पंप। वेरी नाइस। हसमुख ने एक मोटरसाइकिल भी ले ली जो ये इस्तेमाल करता था अपने घर से शहर या मार्केट तक जाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये एक चेंज हो गई, शिफ्ट हो गया फ्रॉम ट्रेडिशनल टू मॉडर्न मेथड्स। तो हसमुख खुश था, कहता था नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। हसमुख क्या कहता था? वी आर फार्मिंग वाइजली। हसमुख का कहना था कि अब हम जमींदारी
اب ہم کاشتکاری بہتر طریقے سے کر رہے ہیں اور اب ہم اس کا فائدہ بھی ہمیں بہت اچھا ملتا ہے. ٹھیک ہے. بیج کہہ رہا ہے کہ میں اس ووڈن باکس میں فارگاٹن پڑا ہوں, یعنی مجھے بھولا گیا ہے, میں باکس میں پڑا ہوں لیکن میں یہ سارا دیکھ رہا ہوں, سن رہا ہوں. دمجی بھائی کا بھی اس کا اولڈ ہونا, ہسمکھ کا نئے میتھڈز کو لے لینا, نئی مشینوں کو لے لینا. تو جو ہسمکھ کہہ رہا ہے کہ وی آر فارمنگ وائزلی, دس از پروگریس, اس بیج کو اس میں شک تھا, اس کو ڈاؤٹ تھا, از دس ریئلی پروگریس؟ یہ سیڈ کا سوال ہے. ٹھیک ہے. آگے ہم جانیں گے ابھی کہ جو یہ سیڈ ہے, جو یہ بیج ہے, اس کا سوچنا صحیح ہے یا غلط ہے. اب ہوا کیا, جو یہ سیڈ ہے اس کا کہنا ہے کہ جب ٹرینڈ چینج ہو گئی فرام ٹریڈیشنل میتھڈس ٹو ماڈرن میتھڈس, فرام اولڈ ویز ٹو نیو مشینز, تو اس سے کیا ہو گیا کہ اس سے خرچہ بڑھ گیا, مور اینڈ مور ایکسپینسز, مور اینڈ مور ایکسپینسز. ٹھیک ہے. سیڈ کا مزید کہنا ہے کہ جو نیکسٹ 20 ایئرس ہیں اس میں ڈراسٹک چینج ہو گئی. اس میں ہوا کیا کہ جو کاؤز اور بلونز ہیں ان سے گوبر حاصل کیا جاتا تھا لیکن وہ بھی نایاب. اب ہوا کیا, اب اس ہسمکھ کو, ان کاشتکاروں کو کیا لینا پڑا تھا, ان کو لینا پڑتا تھا فرٹیلائزرز. ٹھیک ہے پیارے بچوں, یہاں تک آپ نے سمجھ لیا کہ میں آپ کو کیا کنوے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں آپ کو ایک سیڈ کی سٹوری بیان کر رہا ہوں جو اپنی اور اپنے کاشتکار دمجی بھائی کے متعلق ہے. سیڈ کا کہنا ہے کہ اگر میں نے آپ کو یہ کہانی آج نہ بتائی تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. ٹھیک ہے پیارے بچوں, اس کے ساتھ ہی میں آپ کو یہیں پہ روکتا ہوں. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں ہم اس سے آگے پڑھیں گے اور اس لیسن کو اپنے پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. تب تک دیجیے اجازت. السلام علیکم. تھینک یو.